Hello everyone and welcome to Civil Staff. So we all are here to discuss about the RBI Grade B's paper of 2019. In that we are going to discuss about paper number 2, that is Finance and Management, and I will be taking questions of finance topic. Only finance topic will be discussing. So if I talk about the agenda for today's lecture, that will be question, discussion and analysis for 2019 finance section. Okay. So this particular paper analysis I will be taking into two parts. So today is the part 1 in which I will be taking up 20 questions, and whatever remaining questions are there I will be taking it in the next part. Okay, so let's start with question number 1. So a council which governs all the issues related to GST is headed by. Okay, so basically GST was came into existence in 2017. So GST जो है वो क्या है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं एंड द फ्रेमवर्क दैट हाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट विल रन इन आवर कंट्री. So for this there was a specific council which was formed under section or under article 279A of the constitution. Okay, so under article 279A के according there was a specific council which was formed after the approval from the President of India, and it should be headed by, as per that particular article, it was headed by, that is Finance Minister. It used to be headed by Finance Minister. Even now according to this particular constitution's article, this particular GST council is headed by the Finance Minister. So your answer will be your Finance Minister. So I have just told you about this article number 279A, and it was came into existence on 12th of September 2016, which was issued on 10th of September 2016. Okay, is it clear? So this particular article was issued on 10th and it came into existence or came into effect from 12th of September, that is 2 days after it was issued. So if I talk about the article 279A, the members in the GST council will be, it will be a joint forum of central as well as state members. So Union Finance Minister will be the chairperson, then Union Ministers of states in charge of the revenue of finance, okay, they are also will be the members, and the ministries in charge of finance and or taxation or any other ministry nominated by each state government, these also will be the members of this GST council. Because देखो ultimately GST is integrated tax between central and state government. They have to decide the policies, rules and regulations, है ना? So that's why all the central government members which are required to be here and all the state government members which are required to be here in this GST council are the part of GST council. Now the next question is, in India fiscal policy is implemented through a budget. Which government body is responsible for it? तो जो भी बजट अनाउंस किया जाता है, वो जो बजट है वो किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? तो एवरी ईयर इन February month गवर्नमेंट अनाउंस द बजट इन विच दे विल बी टेलिंग द नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स, राइट, कि हम कितना खर्चा करेंगे टुवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर्स एंड व्हाट विल बी आवर सोर्स ऑफ इनकम, मेनली टैक्सेशन ऑब्वियसली, राइट. सो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, नन ऑफ द. सिंपल सा इसका आंसर है, दैट विल बी योर फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हिच इज अगेन हेडेड बाय निर्मला सीतारमन, who is our finance minister, and with his council and body members they make a budget and announce the same in the parliament, right? So the answer will be the finance ministry. Then the next question will be, Geneva based Basel committee on banking supervision has come up with Basel norms which have been formed to address which issues. देखो अब ये जो बेजल नॉर्म्स आए थे, दैट वाज ऑब्वियसली क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है. द क्वेश्चन इज इटसेल्फ सेइंग दैट इट वाज रिलेटेड टू द बैंकिंग सुपरविजन. तो यहाँ पर इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड if you have understood this, that these particular framework, the Geneva based Basel committee frameworks are specifically for the banking supervision, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाना था.
So it was talking about what? So the question is which have been formed to address which issues? Market risk, political risk, bank risk, systematic risk, या none of the above. So basically, if I talk about the answer is simple, that is about bank risk, because ultimately this particular norms which were introduced as Basel norms were addressing the banking risks which were happen in our economy. Okay, chalo. Okay, so now the next question is, derivative are financial instruments to hedge risk. It derives its value from which of the following? Exchange determined, fixed by SEBI, underlying market determinants, and none of the above. So basically सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा that what are derivatives. So derivatives जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपनी जो वैल्यू है वो उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट दे डिटरमाइन देयर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रोडक्ट, ओके, सम अदर थिंग. So that particular thing is known as underlying asset or underlying liability. Hence the answer will be your underlying. तो डेरिवेटिव याद रखना, डेरिवेटिव एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू जो है किसी और एसेट पे डिपेंड होती है और उस पर्टिकुलर एसेट को हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइंग बोलते हैं. This particular concept I have talked about in my classes in very much detail. Okay, so answer will be your underlying. Okay, then next question will be which of the following risks can be eliminated by the derivatives. So eliminated इसमें जो derivative है इनमें से कौन से रिस्क को eliminate करता है? Market risk, overall risk, unsystematic risk, systematic risk, interest rate risk, या none of the above. So I'll just give you an example. If I talk about, say suppose जैसे आपने गोल्ड लेना है, ठीक है, तो I'm just giving you an example that मान लो कि आपकी शादी हो रही है, you are getting married, ठीक है, आपकी मैरिज है, तो you just want to buy a gold, ठीक. तो अब आपने गोल्ड सोचा कि आने वाले टाइम में उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, the rate will increase. So what you do is you just go to a goldsmith and tell him that आप एक काम कीजिए, अब आज के ही रेट पे मेरा गोल्ड बुक कर लीजिए. ऐसा होता है? यस. क्यों? अल्टीमेटली बिकॉज आप ये चाहते हो कि जो आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा मेरे को वो एक्स्ट्रा प्रीमियम ना देना पड़े. आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव बुकिंग एट अ सेम लेवल विच इज टूडे, राइट. अब क्या होगा, उस दिन मान लो कोई भी रेट हो, चाहे अगर बढ़ गया रेट चाहे कम हो गया, अगर रेट बढ़ जाएगा तो यू विल बी इन प्रॉफिट, अगर रेट कम हो जाएगा तो यू विल बी ऑन लॉस. तो देखो ये प्रॉफिट की वैल्यू जो लॉस, सॉरी द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस will be determined on the basis of gold, that is your underlying, है ना. गोल्ड के बेसिस पे ही डेरिवेटिव का प्रॉफिट या डेरिवेटिव का लॉस डिपेंडेंट है. दिस इज मतलब मैंने ये एग्जांपल बहुत ही लेमन लैंग्वेज में दिया है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. हेंस अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपका इंटरेस्ट का बढ़ना या इंटरेस्ट का कम होना, मतलब गोल्ड रेट का बढ़ना या गोल्ड रेट का कम होना, वैसे ही इंटरेस्ट का बढ़ना इंटरेस्ट का कम होना ही डेरिवेटिव जो है इजी करता है हमारे रिस्क को एक तरह से टैकल करने के लिए, राइट. इज इट क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर ट्रेजरी बिल्स इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट इज योर ट्रेजरी बिल? अगर मैं बात करूं ट्रेजरी बिल के बारे में, तो ट्रेजरी बिल्स आर द बिल्स विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिक्वायर्ड ऑफ फंड्स. जब उनको फंड्स रिक्वायर होता है तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सो दैट दे कैन गेट फंड्स. So treasury bills is a financial instrument which is a corporate issued securities, RBI securities, government securities issued by RBI for managing short term funding requirements, securities issued and managed by government, none of the above. तो हमने अभी डिस्कस किया है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो थ्रू आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज गवर्नमेंट बैंक, है ना. जैसे हमारे लिए नॉर्मल बैंक्स क्या है, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो हमारा अकाउंट जो है इन बैंक्स में है. बट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो आरबीआई में है. तो गवर्नमेंट आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे दी सिक्योरिटीज इशू करता है एंड फाइनली ये जो पैसा है वो इनके पास जाता है. ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियल पेपर्स आर इशूड फॉर व्हाट पर्पस. जो कमर्शियल पेपर हैं वो किस पर्पस के लिए इशू किए जाते हैं? फर्स्ट वन इज बाय बैंक्स फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स,
बाय गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो कमर्शियल पेपर है वो किस पर्पस के लिए इशू किए जाते हैं? तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि कमर्शियल पेपर सबसे पहले होता है क्या है, जब भी किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, जब भी किसी कॉर्पोरेट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? जब शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं लेस देन 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो उसके लिए है ना, लेस देन 1 ईयर के लिए जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। उसमें से भी जो कमर्शियल पेपर है, दीज कमर्शियल पेपर्स आर जनरली इशूड बाय द कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। ओके, इज इट क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आपका बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ऑपरेशनल रिस्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो जो ऑपरेशनल रिस्क होता है वो किन पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से अराइज होता है? सो न्यू रेगुलेटरी नॉर्म्स, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, इनएडिक्वेट एक्सटर्नल कंट्रोल, स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यह बात याद रखनी है यहां पर कि इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल? Say suppose if I am doing a work, I am a junior level employee, so that work should be properly checked by the senior level employee. That is what internal control is. कि एक मेकर है, एक चेकर है, राइट? एक काम कर रहा है, दूसरा काम चेक कर रहा है, थर्ड या फिर तीसरा पर्सन काम चेक कर रहा है ना? So if there is no adequate internal control, there will be an operational risk. Why it is an operational risk? Because ultimately what will happen कि अगर इंटरनल कंट्रोल आपकी कंपनी में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज अ रिस्क कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं। बिकॉज कोई भी अपना, अगर मान लो कि मेकर चेकर वाला सिनेरियो नहीं होगा, सो एवरीवन डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देम देयर कन्वीनियंस एंड दे विल डू एनीथिंग, वो कुछ भी करते रहेंगे, है ना? इसलिए इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेंस इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस की वजह से आपकी ऑपरेशन रिस्क हो सकते हैं। चलो, इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाइपोथिकेशन ओनली वैल्यू ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड, ओनली ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, बोथ वैल्यू एंड ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, नीदर वैल्यू एंड नॉर ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, आपने देखा होगा, आप जैसे बस में ट्रैवल करते होंगे या फिर ऑटोज में ट्रैवल करते होंगे, तो उसके पीछे लिखा होता है इन हाइपोथिकेशन विद दिस बैंक, है ना? इन हाइपोथिकेशन विद दिस बैंक, या इन हाइपोथिकेशन विद दिस पर्टिकुलर एनबीएफसी, या जो भी है, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, जो हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है कि हम लोग ना ही वैल्यू, ठीक है, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज ओनरशिप तो देखो, ऑटो वाला तो खुद अपना ऑटो चला रहा है, ये बस वाला तो बस अपना खुद चला रहा है। So we have not transferred the ownership as well as we have not transferred any value to that particular bank or that particular NBFCs. Okay, is it clear? चलिए next question will be, which of the following phenomenon includes high inflation and high unemployment? ठीक है, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट किस स्टेज में होगी? तो अगर मैं बात करूं, हाइपर इन्फ्लेशन में होगी, डिफ्लेशन में होगी, डिसइन्फ्लेशन में होगी, री इन्फ्लेशन में होगी, या नन ऑफ द अबव में होगी? तो याद रखिएगा, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका नन ऑफ द अबव, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आती है जब आपका हाई इन्फ्लेशन भी है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो इस ऑप्शंस में वो स्टैगफ्लेशन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का इंक्रीज होना। ठीक है, प्राइसेस का इंक्रीज होना इज व्हाट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रिजर्व बैंक, हाँ जी, इफ रिजर्व बैंक डिक्लेयर्स decreases cash reserve requirements for the bank, then bank will able to lend less credit, increase interest rate, lend more credit, decrease interest rate, या none of the above। देखो सीधी सी बात है, आरबीआई जो है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है वो यूज करता है
दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, दैट बैंक हैज टू कीप, जो नॉर्मल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको अपने नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज का जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपीज टोटल ऑफ नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज, 3% जो है वो सीआरआर है, तो 97 रुपीज इज अवेलेबल विद द बैंक टू गिव इट एज अ लोन। बट नाउ व्हाट आरबीआई इज डूइंग, आरबीआई इज डिक्रीजिंग द कैश रिजर्व, अब वो 3% इसको 2% कर रहे हैं, सो नाउ आरबीआई हैज टू कीप जस्ट 2 रुपीज एंड बैंक हैज 98 रुपीज टू गिव इट एज अ लोन। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि बैंक विल बी एबल टू लेंड मोर रेट अगर आरबीआई जो है वो सीआरआर को क्या कर देता है, कम कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो को अगर कम कर देता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डजंट कम अंडर जीएसटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब 2017 में जीएसटी लाया गया था तो कुछ आइटम्स को जीएसटी से बाहर रखा गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी कब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जीएसटी के अंडर आने वाले हैं। ठीक है, तो गोल्ड हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, सॉल्ट, मिल्क या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना इनमें से जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ठीक है, आपका ऑप्शन में तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, बट आई विल जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट जो आपका एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट अगर जो एल्कोहल दवाइयों में डलता है वो जीएसटी के अंडर है, बट डायरेक्टली अगर ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल देन इट इज नॉट अंडर जीएसटी। ऑल्सो द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इज पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट्स, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब के सब जीएसटी के अंडर अभी तक नहीं आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई टॉक अबाउट इन बैंकिंग सेक्टर, ओके, if I talk about the next question, what is the next question? In banking sector, market risk arises mainly due to, market risk क्यों arise होती है? ठीक है, geographical factors की वजह से, external factor की वजह से, natural calamities की वजह से, internal factor की वजह से, या फिर none of the above। तो याद रखना जो market risk होती है वो हमेशा उसको हम देखो, अभी पीछे भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन आया था सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज अ मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका मार्केट रिस्क, विच इज विच इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। हेंस एक्सटर्नल फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो इंटरनल रिस्क होते हैं, उसको हम एक तरह से ठीक कहीं ना कहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन। पहला हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स, दूसरा हो गया आपका फिक्स्ड क्रेडिट, तीसरा हो गया आपका कैश क्रेडिट, फोर्थ वन इज योर लेटर ऑफ क्रेडिट एंड फिफ्थ वन इज योर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा इसमें से नॉट अ फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन जो है, जहां पे फंड ट्रांसफर नहीं होते, रिकरिंग डिपॉजिट में आप पैसे जमा करते हो, फिक्स्ड क्रेडिट में आप पैसे लेते हो, कैश क्रेडिट में भी आप पैसे लेते हो, बट लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में सिर्फ और सिर्फ जो है लेटर का जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है। इट्स जस्ट अ क्रेडिट लेटर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, देयर इज नो फंड ट्रांसफर इन दिस पर्टिकुलर केस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following a character of bond and not a characteristic of equity? Dilution of ownership, fixed income, variable income, dividend या none of the above। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following is a characteristic of bond but not a characteristics of equity। तो याद रखना अगर मैं बात करूंगा फिक्स्ड इनकम की, देखो जो इक्विटी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है, बट डिविडेंड मिलना इज नॉट कंपल्सरी। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी ईयर दे विल गेट अ डिविडेंड। ओके, दे विल गेट अ डिविडेंड, देयर इज नो कंपल्शन। अब हो सकता है दूसरा केस, कैपिटल मतलब उनका जो शेयर प्राइस है वो अप जाए या फिर शेयर का प्राइस डाउन चला जाए। सो देयर इज नो फिक्स्ड इनकम इन दिस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हु आर इक्विटी शेयर होल्डर्स? दे आर द ओनर ऑफ कंपनी, ठीक है, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। हाउएवर इन केस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर टू द कंपनी। तो उन्होंने बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उन्होंने एक तरह से कंपनी को लोन दे रखा होता है,
और कंपनी उसके बदले उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो यहां पर उनको जो बॉन्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर सब्सक्राइब कर रखे हैं, उस केस में कंपनी उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। हेंस दे हैव अ फिक्स्ड इनकम एवरी ईयर। तो फिक्स्ड इनकम जो है वो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following type of banks act as a government of India agent for financial inclusion in rural area? तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, इनके नाम से ही आपको पता लग जाएगा, रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको एक तरह से नाबार्ड रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आपके जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स हु are into the rural penetration areas and they want the rural development, and जो भी credit facilities and towards the farmers and towards the rural areas, these banks play a major role in such cases. So 1975 में RRB बना था, और इसको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है नाबार्ड, that was formed in 1982, that is नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, RRB विल बी योर आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स? इनकम टैक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स? जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है, जो आपने इनकम कमाई उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड दिस इज डिटरमाइंड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। 1961 में एक स्पेसिफिक एक्ट पास किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, if you will study that act, in that particular act the income from the agriculture products, ठीक है, because farmers के लिए एक तरह से ये स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया था इस एक्ट में, ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। हेंस एग्रीकल्चर इनकम और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following body was created in 2017 as per PJ Nayak committee recommendation? So this is moreover of a, you know, 2019 में ये पेपर पूछा गया था, तो moreover of a current years करंट का ये पार्ट है, कुछ ऐसा, मतलब 1-2 साल का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिकली जो पीजे नायक कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन में बनी थी इन 2017। तो याद रखिएगा, जो आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो है, BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो, which was constituted in 2016, it was, you know, recommended on the basis of PJ Nayak committee, जिसका जो काम था, it was an autonomous body to improve the governance, to help banks to develop appropriately, to make strategies to the bank, and it was a step towards the governance reforms in public sector banks. So this was the particular committee जिसने BBB की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट RBI गाइडलाइंस फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू। तो यहां पर ये भी एक तरह से करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, PSB दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, जो फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइंस थी वो उस टाइम जो है वो स्पेसिफिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनके लिए निकाली गई थी। तो क्योंकि देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी एक तरह से अपग्रेड करना था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट जस्ट वांटेड टू अपग्रेड PSBs आल्सो, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स थे वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस लाइक लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, दे वर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो उसमें एक पर्टिकुलरली सिनेरियो लाया गया था फॉर यू नो PSBs, जहां पर director in PSB to be appointed by NRC. There was specific committee which was formed, NRC committee, that is nomination remuneration committee. ठीक है, तो डायरेक्टर्स इस कमेटी के द्वारा जो है अपॉइंट होंगे, एंड जो NRC कमेटी है, ठीक है, उसमें मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे, है ना, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो टॉप पोजीशन पर नहीं होते, दे आर जस्ट डायरेक्टर इन द कंपनी, राइट, एंड they should be also independent director. Of these non-executive director, not less than 1/2 shall be independent. तो मतलब half of the director should be independent, मतलब उनका कोई भी बैंक से लेना देना नहीं है, they just want it, they are just there to, you know, doing a well-being of the banks. ठीक है, so these are the things which was introduced as fit and proper regime, and it intended to keep central nominated directors away from the PSB boards and ensure minimum political intervention.
तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन को भी कम से कम करना था, और यहां पर तभी ये फिट एंड प्रॉपर की रेगुलेशंस लाई गई थी। तो ये पीएसबी इसके लिए स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहां पर देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर भी, इन सबको भी इन पर्टिकुलर ऑपरेशन से दूर रखा गया था। चलो, एज पर द रिसेंट आरबीआई गाइडलाइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन एनआरसी कमिटी, सेम जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है हमने देख लिया था आंसर, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो होंगे इन एनआरसी कमिटी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, 3 सेम एज अबव, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी सेम है एज अबव। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके फाइनेंस फील्ड से पूछे गए हैं, दैट आई विल बी कमिंग अप विद दोज इन नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर चैनल सो दैट आपको ये अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।